Hi students, today we'll start a new chapter, that is pair of linear equation to variables. For starting this chapter, as in class 9th, you have already studied about linear equation in two variables. The linear equation in two variables. Also in class 8th, you have studied about linear equation in one variable. In class 9th, linear equation in two variable. So linear equation means those equations having two variables and a degree of the variable is 1. Highest power of the variable is 1. So it is of the form ax plus by plus c is equal to 0. It is a linear equation in two variable where a comma b and c are real numbers and another condition is that a square, both a and b are not 0. Both a and b are not 0. Also we can say that such are known as linear equations in two variables having variables x and y. Here the two variables are x and y. So this is the linear equation in two variable which we have already studied in our previous class, that is in class 9. One more condition is that a square plus b square never equals to 0. Now I have examples for you. That is first example is 2x plus 3y is equal to 5, x minus 2y minus 3 is equal to 0, x upon 4 minus y upon 3 is equal to 5, and x minus 0 into y is equal to 3 or x is equal to 3, sorry. So here in NCERT, in starting introduction of this chapter, there is given of game that Akhila went to a fair in her village. She wanted to ride in a giant wheel और होपला गेम खेलना, वो रिंग वाली गेम उसको खेलना चाहती है. तो कंडीशन यह दी है कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील. ठीक है, तो ये आपने ये पढ़ना है जरूरी. यहाँ पे आप इक्वेशन समझ जाओगे. तो I have an example for linear equations that we have studied in class 9th, that is x plus 5 is equal to x plus y is equal to 5. So इसके में infinite many solution होते हैं. You know that linear equation in two variable having infinite solution and it will always form a equation of a line. तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, graphically representation of linear equation in two variable. So these are the solutions. Here you know how to find the solution and how to represent it on a line in a graph, and it always forms a equation of a line. So class 10th में हम क्या पढ़ेंगे? हम अभी तो बात पिछली क्लासेस की कर रहे थे. In class 10th we will study pair of linear equation two variables. Here this general form, that is this form is an equation having the form a1x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 is the coefficient of x, b1 is coefficient of y, c1 is constant. Similarly in the second equation, a1 a2 b1 b2 c1 c2 all are real numbers. ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट हैं, सारे रियल नंबर्स हैं, such that a1 square plus b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square never equals to 0. So this is about pair of linear equation in two variable. ये उसकी जनरल फॉर्म्स हो गई. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. फॉर एग्जाम्पल इसमें वही है, आप पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस आपने लिखनी है, पेयर में लिखनी है, वही एग्जाम्पल बनते हैं आपके. जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अनदर लिख ली मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो ये पेयर हो गया दो इक्वेशंस का. सो
तो इन्हीं पे हम ऑपरेशंस करते हैं, इन्हीं को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई निकालते हैं। वो डिफरेंट मेथड हम अप्लाई करेंगे, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिर इन ग्राफिकली हम प्लॉट करते हैं। अगला लिखा 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस y इज इक्वल टू, ये तीसरी इज इक्वल टू 5, ये आपको मैं थर्ड एग्जांपल बता रहा हूँ। एंड और y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू, आप और कुछ भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 15। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने वेरिएबल x और y ही लिए हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस में तो आपको इक्वालिटी होल्ड करनी पड़ती है। अब हम इनको ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करेंगे। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कैसे देखते हैं ज्योमेट्रिकली, क्योंकि यू नो दैट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑलवेज फॉर्म्स अ लाइन। तो यहाँ पे 2 ही लाइनें हमारे पास ये। अब इन 2 लाइनें ज्योमेट्रिकली हम कैसे देखते हैं, इनको क्या क्या करती हैं आपस में, ये काटेंगी या पैरेलल होंगी या लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, वही हम बात स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इफ दीज 2 स्ट्रेट लाइंस, अब हमारी ये दोनों जो लाइनें हैं स्ट्रेट लाइंस ही होती हैं ये, इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, अगर एक ही प्लेन में लाई करती हैं, देन 3 कंडीशंस अराइजेस। तो 3 ही कंडीशंस अराइज होती हैं जब एक प्लेन में ये दोनों स्ट्रेट लाइन लाई करती हैं। तो पहली तो कंडीशन ये बनती है कि या तो ये लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, आइदर द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट और एट अ वन पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, मतलब कोइंसिडेंट, जो एक लाइन के पॉइंट होंगे वही दूसरी लाइन के भी पॉइंट होंगे। या तो लाइनें कभी नहीं मीट करेंगी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल। तो जो पहला इंटरसेक्ट किया हियर, इस कंडीशंस को बोलेंगे हम ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई, दूसरी कोइंसिडेंस लाइन बन गई, तीसरी हमारी पैरेलल लाइंस बन गई। तो पहली को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। दूसरा हो गया कोइंसिडेंट लाइन। को मीन्स सेम, इंसिडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो कोइंसिडेंट लाइन। तीसरी लाइन होगी पैरेलल लाइंस। तो यही इस चैप्टर में हम मेन स्टडी करेंगे तीनों लाइंस के ऊपर, कि वो कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइंस हैं। अब आपके लिए मैं एग्जांपल, ये पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का 3.1 का, कि अब देखो यहाँ पे वर्ड यहाँ स्टेटमेंट दी है, और ये वी हैव टू फ्रेम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि आफ्ताब टेल्स अ डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, तो अगेन आई हैव रिटन इट। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर x ईयर ले ली हमने। अब 7 years ago हमने स्टार्टिंग में बात करी कि आफ्ताब टेल्स इज डॉटर 7 years ago। सो 7 year ago की एज हो गई x माइनस 7 years, एज वेल एज अब बात करी क्या आफ्टर 3 years from now, तो then the daughter's age becomes x plus 3 years। तो ये x plus 3 years हमारी एज, डॉटर की एज जो बन जाएगी। अब बात करते हैं फादर की एज के ऊपर, आफ्ताब की एज के ऊपर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर दैट इज इक्वल टू y years। सो 7 years ago means we have to go back 7 years, पीछे जाना है। तो प्रेजेंट y है तो पीछे जाएंगे तो y माइनस 7 years हो जाएगा। ठीक है, अब 3 years from now, अब आगे जाना 3 साल, आज से 3 साल बाद मीन्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, y प्लस 3 years, जैसे हमने डॉटर्स में किया था। डॉटर में भी हमने ऐसे ही किया था ना, x प्लस 3 बना था, यहाँ y प्लस 3 बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे जो ATQ दिया है, ATQ ये दिया है कि 7 years ago जो बात करी है, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स जो फादर है उसका, आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू
7 times of daughter's age, right? So आफ्ताब की एज तो 7 years ago तो y माइनस 7 बनी थी, है ना, इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। डॉटर एज की 7 years ago x माइनस 7 थी, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7। सो वी विल सॉल्व इट लेटर ऑन। चलो इसको बाद में सॉल्व करते हैं। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। 3 years लेटर, 3 साल के बाद जो आफ्ताब्स एज है दैट इज इक्वल टू 3 times of daughter's age, 3 times of daughter age. So that is equal to, after 3 years आफ्ताब की एज y प्लस 3 हो जाएगी, 3 times the daughter की एज 3 into x प्लस 3। तो नाउ हमारे पास ये दो इक्वेशंस होगी। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49। तो y इज इक्वल टू 7x minus 49 plus 7. So ultimately this becomes, that is equal to y is equal to 7x minus 42। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। अब हम दूसरी जनरेट करेंगे, दैट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, दैट इज 3x प्लस 9 हो गया। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 9 माइनस 3, so y कम्स आउट टू बी 3x प्लस 6। तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई, तो हम इनको बोल सकते हैं दीज आर द टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल x एंड y। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने नॉट ग्राफिकली बट एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली एंड टू फाइंड इट सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन निकाल दिए x और y के लिए, दोनों लाइंस को अलग अलग निकाल दिए इनके सोल्यूशन। अब नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट देम ऑन दिस बोर्ड। ग्राफ अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं बोर्ड पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, जो भी बाकी के दो क्वेश्चन और एनसीईआरटी के हैं। तो along x axis I take the variable age of father, and along y axis age of daughter, along x axis and along y axis age of father। तो ग्राफ तो सबको आता है प्लॉट करने, कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमारी दो लाइनें बन रही हैं और दोनों लाइनें एक पॉइंट पे काट रही हैं। दैट पॉइंट इज 12,42 मीन्स x 12 है और y 42 है। एब्सिसा 12 ऑर्डिनेट 42। तो एब्सिसा यहाँ पे हमारा बिहेव कर रहा है एज ऑफ डॉटर, दैट इज x ईयर्स, x इज इक्वल 12 ईयर्स, और ऑर्डिनेट हमारा बिहेव कर रहा है एज ऑफ फादर, आफ्ताब एज, दैट इज y इज इक्वल